Welcome everybody to this new lecture of our book, paper number first, mechanics. We were discussing about the some basic topics of this paper and this unit, and some of them like Newton's law of motion and Newton's notion about the space, and also uh, we were discussing about the types of or branches of mechanics, which is the statics, kinematics, dynamics. And today we will discuss some other topics related to our syllabus. And the topics of today's frame of work is one of them is limitations of Newton's law, and other one is the frame of reference. Okay, so let us first discuss about the limitations of Newton's law. Although you studied the Newton's law of motion in your 11th or 12th standard, and you are most of them you are very familiar to this law of motion, but there are certain limitations about Newton's law, and we have to be studied about that. And let us first start the today's lecture with the limitation of Newton's law. We study the three Newton's laws of motion. The first one is the laws of inertia, which states that if a body is at rest, then it remains at rest for an infinite time of period, and if it is in the uniform motion, then it will be remains in the uniform motion for a period of infinite time, until and unless an external impulse or external force exerted on that particular body. Okay, and the second law of motion is simply F equals to ma, the mathematical form, and is stated as the force exerted on a body is simply directly proportional to the rate of change of linear momentum, and the final equation is F equal to ma. And the third law of motion is the action and the reaction law, that to every action there will be a reaction. So there are certain limitations in Newton's law of motion, and we will look after these limitations. The first one limitation, as you can see now on your screen, that the first limitation, the second law of motion, that is F equal to ma, would not hold good in the case where m does not remains constant. Actually जो F equal to ma वाला केस है, जो आप सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को स्टडी करते हैं, तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो आप पढ़ते हैं मैथमेटिकल फॉर्म, दैट F इक्वल टू ma. इस तरह का आप एक मैथमेटिकल फॉर्म पढ़ते हैं, दैट F इक्वल टू ma. तो ये जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, एक्चुअली जो फोर्स जिसको आप एक्सटर्नल फोर्स कह रहे हैं, ये डिपेंड करता है मास के ऊपर और एक्सीलरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर मास और दैट पर्टिकुलर पार्टिकल और बॉडी. तो अगर आपको F को कांस्टेंट रखना है तो जरूरी है कि M कांस्टेंट रहे और A भी कांस्टेंट रहे. इवन जब आप आगे स्टडी करेंगे इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो टॉपिक आज हम स्टडी करेंगे, तो आप ये देखेंगे एक्चुअली वहाँ जो एक्सेलरेशन के ऊपर आप बात करेंगे, तो वहाँ एक्सेलरेशन एक्चुअली जीरो होना चाहिए ऑब्जर्वर. खैर वो बाद में बात करेंगे, लेकिन अब फॉर द टाइम बीइंग और इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अगर आप बात करें, तो एक्सेलरेशन के ऊपर बात ना करके अगर हम मास के ऊपर बात करें अभी फॉर दिस पर्टिकुलर टाइम, तो यहाँ ये फॉर्मूला ये डिमांड करता है कि m शुड बी कांस्टेंट, m शुड बी कांस्टेंट, ऐसा होना चाहिए.
m शुड बी कांस्टेंट। लेकिन कुछ कुछ केस ऐसे आप स्टडी करते हैं और वो आपके नेचर में भी कुछ केसेस हैं ऐसे। जैसे आप फर्स्ट केस की बात करेंगे, द फॉलिंग रेन ड्रॉप। अगर कोई गिरती हुई पानी की बूंद है, जैसे वर्षा की बूंदें होती हैं, उस तरह का अगर आप एक कोई केस स्टडी करते हो जो वर्षा की बूंद नीचे नीचे ड्रॉप हो रही है, तो आप अगर उस तरह के केस को स्टडी करें तो आप ये देखते होंगे कि इस केस का, इस बूंद का, जो पानी की बूंद है उसका जो मास है, जैसे जैसे वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आती रहती है तो उसका मास इंक्रीज होता रहता है। इसका मास जैसे जैसे वो नीचे जाएगी, द मास ऑफ द फॉलिंग रेन ड्रॉप मस्ट बी इंक्रीज्ड। ओके, सो ऐसा केस जब हम स्टडी करते हैं, यहाँ भी आप देख रहे हैं कि यहाँ मास कांस्टेंट नहीं रहा। दूसरा, अगर आप दूसरा कोई एक केस स्टडी करें, सेकंड केस को आप स्टडी करें, तो जैसे आप रॉकेट वाला केस को आप स्टडी करते हैं। रॉकेट इस कंसेप्ट पे काम करता है कि अगर आपके पास कोई इस तरह का रॉकेट है और आपने उसको लॉन्च किया, से दिस टाइप ऑफ रॉकेट, एंड you are want to launch it, okay, with an acceleration of a, तो यहाँ बहुत सारे हिस्से होते हैं रॉकेट्स में। तो होता क्या है कि रॉकेट का अगर शुरू में मास m था और जैसे जैसे एक्सेलरेशन a से ऊपर जाएगा तो इसके मास m में कुछ ना कुछ रिड्यूस, कुछ ना कुछ कमी, इसका मास रिड्यूस होता चला जाएगा, कुछ ना कुछ कमी इसके मास में आती चली जाएगी। तो इस तरह का केस आप स्टडी करते हैं। यहाँ भी इस केस में भी आप देखेंगे कि ये जो मास m है ये कांस्टेंट नहीं रहता है, कांस्टेंट नहीं रह पाता है। तो इस तरह के केसेस जब आप स्टडी करते हैं तो ये जो फॉर्मूला आप बेसिकली पढ़ते हैं F इक्वल्स टू ma, तो ये बहुत ज़्यादा, आप ये नहीं कह सकते कि ये बहुत ज़्यादा देर तक वैलिड रह सकता है या फिर कांस्टेंट आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। ओके, सो दिस type of limitation is with this the second law of न्यूटन। दूसरा एक और केस जब आप पढ़ते हैं रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी का बारे पढ़ते हैं कि रिलेटिविस्टिक केस में जो m का वैल्यू है वो होता है m नॉट ओवर अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। ओके, तो जैसे जैसे जो पार्टिकल की वेलोसिटी है v, वो अप्रोच करती है रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करती है, तो m का जो वैल्यू है वो इंक्रीज होता चला जाता है। m कैन नॉट बी कांस्टेंट हियर। ओके, सो आप चाहे स्टडी करें किसी फॉलिंग रेन ड्रॉप को स्टडी करें, चाहे आप किसी रॉकेट के केस को स्टडी करें, या तो फिर आप किसी रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के मास को स्टडी करें, इन तीनों ही केसेस में m, the mass of the particle है m, which is the mass of particle, cannot be constant, cannot be constant, constant नहीं रहता है, m cannot be constant। ओके, सो यहाँ जो वैलिडेशन है, जो वैलिडिटी है इस फॉर्मूले की, वो थोड़ा कम हो जाती है। फॉर्मूला इन केसेस में वैलिड नहीं रहता, यानी f it changes when m changes। मास जब भी बदलेगा, एक्सर्टेड फोर्स निश्चित रूप से वहां बदलेगा। सो this formula is no longer be valid in these types of particular cases। okay, so let us now see here the three cases that we are discussing now, that the first one is the falling raindrop, which gathers mass as it falls due to more water vapor condensing around it. The mass of the drop continuously increases and therefore does not obey the condition F equals to ma. The second one is the rocket
the example of the rocket, which loses part of its mass as it moves forward and in the form of ejected burnt fuel. Okay, and particle with relativistic velocities, this type, the mass of the particle is given by this formula, where m naught is the rest mass of the particle. So the mass of the particle increases as its velocity become appreciable fraction of the velocity of light or the relativistic velocity. तो ये कुछ limitations हैं न्यूटन्स लॉ के साथ, और इन न्यूटन्स लॉ के साथ ही, इन लिमिटेशंस के साथ ही न्यूटन्स लॉ आगे चलता है. So these are the limitations of Newton's law. Let us move forward to our new topic, that is the frame of reference, and this is a very important and most interesting topic. That frame of reference, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा frame of reference क्या होता है. Okay, frame of reference अगर definition wise हम इसको समझे तो a system of coordinate axis which defines the position of a particle or an event in 2 or 3 dimensional space is called the frame of reference. एक सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस हो सकता है जो किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को किसी 3 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल एक्सिस में डिफाइन करे, उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं. बहुत ही सिंपल और अच्छे व्यवहारिक एग्जांपल के द्वारा हम इनको समझ सकते हैं. जैसे आप किसी बस में ट्रेवल कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि आप जब किसी बस में ट्रेवल करते हैं तो कोई एक व्यक्ति जो बस के बाहर है, इसको मैंने ऑब्जर्वर 1 कहा है, और ये जो बस है ये किसी एक्सीलरेशन ए से किसी डायरेक्शन में एक्सीलरेटेड हो रही है. तो इस ऑब्जर्वर 1 जब इस बस को देखता है तो ये इसके एक्सीलरेशन ए को देख सकता है, फील कर सकता है. इसके अनुसार ये बस एक्सीलरेशन ए से इस तरफ, इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है. लेकिन एक दूसरा ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर नंबर 2, जो बस के अंदर है, उस ऑब्जर्वर के लिए ये बस एक्सीलरेट नहीं कर रही है, क्योंकि वो अपने आप को एट रेस्ट महसूस कर सकता है. तो इस तरह का जो केस हैं, जो केसेस हैं, जब हम इस तरह की ऑब्जर्वर पे डिपेंड करने लगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कॉन्सेप्ट है, इसको हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं. द फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड द सेकंड वन इज द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ये आप इस एग्जांपल से बहुत आसानी से ये सीख सकते हैं. और भी बहुत सारे एग्जांपल अभी हम इसके बारे में जब डिस्कस करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में, तो आपको देखने को मिलेंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस सिंपली बाय डेफिनेशन वाइज आप समझ सकते हैं, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक एक्सिस का एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो किसी पार्टिकल की पोजीशन को डिफाइन करता है, या फिर कोई इवेंट हो सकता है 3 डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल स्पेस में, उसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह सकते हैं. ऑब्जर्वर 1 जो बस के बाहर था, उसके लिए बस एक्सीलरेटेड कर रही थी एक्सीलरेशन ए से, और ऑब्जर्वर 2 के लिए वो रेस्ट पे थी. तो इन्हीं दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड द सेकंड वन इज द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ओके, सो अकॉर्डिंगली हम इन टॉपिक्स को आगे डिस्कस करेंगे. सो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के ऊपर जब हम बात करते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के ऊपर जब हम बात करते हैं, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आप 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. पहला है एक ऐसा फ्रेम जिसमें जो ऑब्जर्वर का एक्सीलरेशन है, नोट दैट, ऑब्जर्वर का एक्सीलरेशन है, जो उस इवेंट को देख रहा है, जो उस घटना को घटित होते हुए देख रहा है, उसका एक्सीलरेशन 0 है. एक्सीलरेशन 0 होने से मतलब ये है कि उस ऑब्जर्वर की वेलोसिटी, उस फ्रेम की वेलोसिटी, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वेलोसिटी कांस्टेंट रही होगी, क्योंकि एक्सीलरेशन तभी 0 हो पाएगा जब उस पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस या उस पर्टिकुलर ऑब्जर्वर की वेलोसिटी कांस्टेंट रही होगी. ठीक है, तो इस तरह के फ्रेम को जिसमें ऑब्जर्वर का एक्सीलरेशन 0 हो, अर्थात ऑब्जर्वर एक्सीलरेट सॉरी ऑब्जर्वर एक्सीलरेट ना करे,
इस तरह के फ्रेम को हम इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं या इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं, जिसमें ऑब्जर्वर रेस्ट पे हो। एक्सीलरेशन जीरो होने का मतलब क्या है कि ऑब्जर्वर रेस्ट पे हो या तो फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, उसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट हो, समय के साथ ना बदले, ठीक है। और इस तरह के फ्रेम को हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होल्ड्स करते हैं, दैट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन होल्ड्स हियर, ओके, इन द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेकिन जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं, तो फिर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जहां ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन जीरो ना हो, यानी जो वेलोसिटी है ऑब्जर्वर की वो चेंज हो समय के साथ। तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम बोलेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन होल्ड नहीं करते। ओके, सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ frame of reference. The first one, you have to be understand about frame of reference। एक इवेंट या किसी पार्टिकल की पोजीशन को हम किसी 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के द्वारा, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के द्वारा हम कहीं लोकेट कर सकते हैं। तो उस लोकेशन का वो जो तरीका है उसको लोकेट करने का, दैट इज नोन एज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरीके होते हैं, दो तरीके के होते हैं, दो कैटेगरी में हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज द इनर्शियल फ्रेम एंड द सेकंड वन इज द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जहां न्यूटन्स के लॉ होल्ड करते हो, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन होल्ड करते हो। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जहां न्यूटन्स के लॉ होल्ड नहीं करते, ठीक है। यानी यहाँ जो ऑब्जर्वर का एक्सीलरेशन है वो जीरो है, यानी ऑब्जर्वर का जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, और यहाँ जो एक्सीलरेशन है वो जीरो नहीं है, अर्थात जो वेलोसिटी है ऑब्जर्वर की वो समय के साथ बदल सकती है। लेट अस टेक सम एग्जांपल एंड यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दैट द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड सेकंड द non-inertial frame of reference. Let us first take an example. ये हम चक्री वाले एग्जाम्पल 12th स्टैंडर्ड में बहुत ज्यादा सॉल्व करते हैं कि हमारे पास एक चक्री है, उस पर एक मास m1 लटका हुआ है, दूसरा मास एक m2 है, और m1 m2 के बीच में कोई जो इक्वेशन ऑफ मोशन हम जिसे बोलते हैं उस तरह की इक्वेशन हम लगाते हैं। तो जो ये जितने भी एक्सपेरिमेंट है, इस तरह के जितने भी ऑब्जर्वेशन हैं, वो सब हम ग्राउंड या अर्थ सरफेस पे मेजर करते हैं। अर्थ सरफेस पे मेजर यानी जो ऑब्जर्वर है, जो हम हैं, जो इस एक्सपेरिमेंट को किसी लैब में परफॉर्म कर रहे हैं, वो हमेशा किस पे रहते हैं, उस ऑब्जर्वर का या उस एक्सपेरिमेंट करने वाले का जो एक्सीलरेशन रहता है वो हमेशा जीरो रहता है, वो लैब में मूव नहीं करता। यानी इस तरह की कंडीशन के साथ हम इस तरह के एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते रहते हैं। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली ये बात है, एक क्वेश्चन यहाँ, एक बहुत जनरल क्वेश्चन अराइज ये हो सकता है कि जब हम लैब में इस तरह के एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं, हम ग्राउंड पे हैं और अर्थ सरफेस पे हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन साथ के साथ एक कंडीशन ये वाली इसमें जुड़ जाती है कि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे रोटेट भी तो हो रही है, यानी अर्थ की कुछ ना कुछ तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी होने का मतलब ये है कि इसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो समय के साथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और आपने अभी अभी पढ़ के आए हैं कि जब भी वेलोसिटी समय के साथ चेंज होगी, इस वेलोसिटी चेंजेस विद टाइम, तो आप कहाँ वर्क कर रहे हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वर्क कर रहे हैं। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जब आप वर्क करते हैं तो वहां न्यूटन्स के लॉ होल्ड नहीं करते। और इस तरह के एग्जांपल्स जितने भी हम सॉल्व करते हैं, इस तरह के, चाहे वो इंक्लाइंड प्लेन वाले एग्जांपल्स हों, चाहे ये एग्जांपल हों, इस तरह के एग्जांपल्स को जब हम सॉल्व करते हैं तो हम हमेशा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को ही यूज करते हैं और इस तरह के आंसर्स हम फाइंड आउट करते हैं। तो
अब क्वेश्चन यहाँ ये है कि जो अर्थ रोटेट कर रही है अपने सरफेस पे, अपने एक्सिस पे, वो किसी ना किसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी से वो रोटेट कर रही होगी, और उसके एंगुलर फ्रीक्वेंसी के कारण जो वेलोसिटी v की वैल्यू है वो चेंज हो रही होगी, यानी हमारा कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन जरूर है। तो क्वेश्चन ये है कि जो हम अर्थ के बारे में बात करते हैं कि अर्थ एक इनर्शियल फ्रेम है या फिर एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो आइडियली अगर आप बात करें अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट कि अगर अर्थ किसी ना किसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी से रोटेट कर रही है और उसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो हम हमेशा समय के साथ चेंज हो रही है, तो अर्थ definitely a non-inertial frame of reference ideally। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर अर्थ को आप बोलते हैं तो फिर वहां न्यूटन्स के लॉ तो होल्ड नहीं करने चाहिए, और अगर न्यूटन्स के लॉ होल्ड नहीं करते हैं यहाँ, तो फिर ये वाले जितने क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे थे आज तक, इन सब का जो मेथड ऑफ सॉल्विंग है हमारा, वो निश्चित रूप से अलग होना चाहिए। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि सॉल्यूशन ये है कि जो अर्थ का जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, अर्थ की जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम होती है। बहुत कम से मतलब ये है कि इतनी कम होती है कि जो इतनी कम स्पीड से, इतनी कम एंगुलर फ्रीक्वेंसी से अर्थ रोटेट करती है अपने एक्सिस पे कि हम उसके एक्सीलरेशन को जीरो कंसीडर कर रहे हैं। टू बी प्रैक्टिकली हम उसके जो एक्सीलरेशन को, चूंकि जो अर्थ का रोटेशन है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, वो बहुत कम होती है, अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 6 × 10⁻³ रोटेशन पर सेकेंड। सो इतने कम रोटेशन है तो उसको हम नेग्लिजिबल कंसिडर कर सकते हैं, और दैट्स वाई जो एक्सीलरेशन है अर्थ का वो हम जीरो ट्रीट कर सकते हैं, प्रैक्टिकली जीरो ट्रीट कर सकते हैं। और अगर अर्थ का एक्सीलरेशन जीरो होगा तो अर्थ को हम inertial frame consider कर सकते हैं। Okay, so but the angular frequency of the earth is very small, so that the acceleration angular can be considered approximately zero, and we can consider earth as an inertial frame। Okay, तो inertial frame को हम अर्थ को हम कंसिडर कर सकते हैं, ऐसा हम कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकली तो अर्थ एक इनर्शियल फ्रेम है, पर आइडियली अगर आप थियोरेटिकली उस बात पे को स्टडी करें तो फिर आप पाएंगे कि अर्थ एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। ओके, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि जब हम ग्राउंड पे सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और अर्थ रोटेट हो रही है तो एक्चुअली उसका कोई रोटेशन, एंगुलर फ्रीक्वेंसी उसकी कोई ना कोई होगी, उसका कोई ना कोई फिर डेफिनेटली एक्सीलरेशन होगा। एक्सीलरेशन अगर कहीं एग्जिस्ट करता है तो निश्चित रूप से आप सीधे इस कॉन्सेप्ट को अगर आपको याद रखना है, इस वाले कॉन्सेप्ट को, कि अगर आप एक्सीलरेशन को जीरो पाते हैं कहीं भी, ऑब्जर्वर का एक्सीलरेशन जीरो है तो आप वर्क कर रहे हैं इनर्शियल फ्रेम में, और अगर ऑब्जर्वर का एक्सीलरेशन जीरो नहीं है तो आप वर्क कर रहे हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में। और इनर्शियल फ्रेम में जो न्यूटन्स लॉ है वो होल्ड कर जाते हैं बड़ी आराम से, बहुत आराम से हम उनके साथ काम कर सकते हैं। लेकिन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन डज नॉट होल्ड एज गुड एज इन द inertial frame of reference। Okay, so let us see some examples। ये एक एग्जाम्पल आप अभी स्टडी करेंगे कि एक यहाँ ऑब्जर्वर है, इस तरह का ये एग्जाम्पल है कि यहाँ एक ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर नंबर 1, ये कोई लिफ्ट है और लिफ्ट में एक मास है m जो किसी स्प्रिंग बैलेंस से यहाँ टंगा हुआ है। तो ये जो लिफ्ट है ये एक्सीलरेशन a से ऊपर की तरफ जा रही है। तो जब ये ऑब्जर्वर 1 इस लिफ्ट को देखता है तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर 1 ये मास m एक्सीलरेशन a से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसका एफबीडी अगर आप बनाएं तो
इस तरह का एफबीडी बनेगा कि टी जो टेंशन है इस स्प्रिंग की ऊपर की तरफ वर्क करेगा, एम जी द वेट ऑफ दिस मास नीचे की तरफ वर्क करेगा, और तीसरा जो एक फोर्स जो एक्सिलरेशन के कारण आएगा दैट इज एफ इक्वल टू एम ए अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो ऑब्जर्वर 1 है ये इनर्शियल फ्रेम में है या नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, क्योंकि ये अभी अर्थ सरफेस पे अभी हम डिस्कस करके आए हैं कि अर्थ को आप एक इनर्शियल फ्रेम कंसीडर कर रहे हैं, यानी न्यूटन्स के लॉ वहां होल्ड कर सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वर ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मास एम भी ऊपर की तरफ जा रहा हो, तो यहाँ एफ बी डी हमने इसका बनाया टी माइनस एम जी, ये फोर्स बैलेंस हो गया, एंड मस्ट बी इक्वल टू एम इंटू ए दैट इज द मास इंटू द एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सो जो टेंशन आया इस ऑब्जर्वर की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो अर्थ सरफेस पे इस एक्सपेरिमेंट को कर रहा है वो आया T इक्वल्स टू एम जी प्लस एम ए। अब इसी को हम एक दूसरे ऑब्जर्वर के थ्रू सोल्व करने की कोशिश करते हैं। एक ये दूसरा एक ऑब्जर्वर है जो उस लिफ्ट के अंदर है, उस लिफ्ट के अंदर बैठा हुआ है, और ये ऑब्जर्वर ये लिफ्ट ए एक्सिलरेशन से ऊपर की तरफ जा रही है। तो इस ऑब्जर्वर के लिए ये मास रेस्ट पे है, क्योंकि लिफ्ट ऊपर जा रही है ना कि मास m अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वर। ओके, इस ऑब्जर्वर को जो पहले वाले केस का ऑब्जर्वर था, इस वाले ऑब्जर्वर के लिए मास m एक्सिलरेशन a से ऊपर जा रहा था, तो हमने वो फॉर्मूला वहां लगा दिया था दैट इज f इक्वल्स टू ma। हमने इसका fbd बनाया t माइनस एम जी इक्वल्स टू ma सिंपली। अभी एक दूसरा ऑब्जर्वर है जो लिफ्ट के अंदर है। अब इस लिफ्ट के अंदर होने की वजह से इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग ये मास m रेस्ट पे है, तो अगर इसका एफबीडी हम बनाएं तो इस मास का जो वेट है mg वो नीचे की तरफ काम करेगा, इस स्प्रिंग की जो टेंशन है T वो ऊपर की तरफ काम करेगी, और जो फॉर्मूला आएगा हमारे पास T इक्वल्स टू mg। तो अगर अब आप इन दोनों केस को एक साथ स्टडी करें, इन दोनों केस को आप एक साथ स्टडी करें, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वर 1 इस स्प्रिंग की जो टेंशन है वो है T इक्वल्स टू एम जी प्लस एम ए, और अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर नंबर सेकंड इस स्प्रिंग की टेंशन है T इक्वल्स टू एम जी। तो क्या स्प्रिंग की टेंशन भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है? क्योंकि आप ये मान के चलिए कि ये जो ऑब्जर्वर वन है ये अर्थ सरफेस पे है, और अर्थ को हम एक इनर्शियल फ्रेम प्रैक्टिकली कंसीडर करते हैं, तो ये इनर्शियल फ्रेम में है, यहाँ न्यूटन्स के लॉ होल्ड करेंगे। और दूसरा जो ये ऑब्जर्वर है ये एक्सिलरेट हो रहा है एक्सिलरेशन ए से, तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में है और यहाँ न्यूटन्स के लॉ होल्ड नहीं करेंगे। तो अगर ऑब्जर्वर 1 भी सही है, क्योंकि उसके कारण जो टेंशन आया है वो आया है T इक्वल्स टू एम जी प्लस एम ए, और ऑब्जर्वर नंबर सेकंड के साथ भी कुछ भी गलत नहीं है, उसके अकॉर्डिंग ये मास m रेस्ट पे है, इस कारण उस स्प्रिंग का जो टेंशन है वो आया है T इक्वल्स टू एम जी। तो क्या फिजिक्स गलत हो गया? क्या कैलकुलेशन गलत है कि वही लिफ्ट है, वही कंडीशंस है, केवल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने बदला है। एक ऑब्जर्वर जो बाहर से देखता है इस लिफ्ट को उसकी ऑब्जर्वेशन, उसकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो टेंशन है इस स्प्रिंग की वो आती है T इक्वल्स टू एम जी प्लस एम ए, और जो एक दूसरा ऑब्जर्वर है उसके अकॉर्डिंग इस लिफ्ट की टेंशन आती है T इक्वल्स टू mg। तो यहाँ क्या फिजिक्स गलत है या कैलकुलेशन गलत है? कैलकुलेशन ना ये गलत है ना कैलकुलेशन ये गलत है, फिर दोनों में डिफरेंस क्यों है? तो ये जो डिफरेंस है ये आया है स्यूडो फोर्स की वजह से।
स्यूडो फोर्स एक फिक्सिशियस फोर्स है, एक फेक फोर्स है, उसके कंसिडरेशन अभी हम करेंगे और उसके बाद फिर से इस प्रॉब्लम पे वापस लौट के आएंगे और आपको ये बताएंगे कि यहाँ कुछ भी गलत नहीं है, केवल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वजह से ऐसा हो रहा है। सो लेट अस मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द स्यूडो फोर्स। दिस the pseudo force. Actually, the pseudo force is comes into our interest due to the solving the problems uh, related to Newton's law of motion in non inertial frame of reference। तो क्या ऐसा हो जाएगा कि अगर हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो क्या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम न्यूटन्स के लॉ कभी भी नहीं लगा पाएंगे, कभी यूज नहीं कर पाएंगे। तो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को हम अच्छी तरह से यूज कर सकें, चाहे वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो, चाहे वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जहाँ न्यूटन्स के लॉ होल्ड नहीं करते, उन सभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम न्यूटन्स के लॉ को अच्छी तरह से यूज कर सके। इसलिए हमारे कंसेप्ट में आया स्यूडो फोर्स, और एक फिक्सिशियस फोर्स भी हम इसको बोलते हैं, और ये फेक फोर्स है, लेकिन चूंकि हमारा प्रॉब्लम को सोल्व करने में मददगारी साबित हुआ तो इसलिए हमने इसको काउंट कर लिया। ओके, तो स्यूडो फोर्स इज अ फेक फोर्स and is used to apply the Newton's law of motion in non-inertial frame of reference, and this is given by Fp equals to minus ma, where m is the mass of the object and a is the acceleration of the observer. Note that a is not the acceleration, also maybe it may be the acceleration of the object, but initially this is the acceleration of the observer, because pseudo force comes into our interest in the when we cannot able to solve the problems related to Newton's law of motion in non inertial frame of reference. Okay, so a is the acceleration of the observer, and negative sign shows that pseudo force always act into the opposite direction of the acceleration and always acts on the ऑब्जेक्ट। ओके, तो स्यूडो फोर्स हमारे इंटरेस्ट में है और एक ऐसा फोर्स है जो एक्सीलरेशन जिस डायरेक्शन में होगा हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा। जिस भी डायरेक्शन में ऑब्जर्वर का एक्सीलरेशन होगा उसी डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा एक वर्क फोर्स करेगा, जिसको हम स्यूडो फोर्स, झूठा फोर्स, काल्पनिक फोर्स, फिक्सिशियस फोर्स, कुछ भी आप इसको नाम दे सकते हैं। क्योंकि ये हमारी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस की जो प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व करने में मददगारी साबित हुआ, इसलिए हमने इसको अकाउंट कर लिया। सो अब वही प्रॉब्लम को हम फिर से डिस्कस करते हैं। ये हमारी फिर से वही लिफ्ट वाली प्रॉब्लम है। एक ऑब्जर्वर है जो लिफ्ट के अंदर है, ये लिफ्ट है, इसमें वही मास m है और जो एक्सीलरेशन a के साथ ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है। अब हमारे पास अकाउंट है फिक्सिशियस फोर्स या फिर स्यूडो फोर्स का, तो उसको हम अकाउंट कर लेते हैं। जब इस ऑब्जर्वर का, चूंकि ये लिफ्ट में ये ऑब्जर्वर भी है और ऑब्जर्वर का भी एक्सीलरेशन a है, तो जिस डायरेक्शन में ऑब्जर्वर का एक्सीलरेशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स वर्क करेगा जिसको हम स्यूडो फोर्स या फिक्सिशियस फोर्स कहेंगे। तो इसका एबीडी अगर आप बनाएं तो इस स्प्रिंग की टेंशन T ऊपर की तरफ काम करेगी, मास m, इसका वेट mg नीचे की तरफ काम करेगा, और चूंकि अब ऑब्जर्वर A का एक्सीलरेशन A है तो A के जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स वर्क करेगा जिसको हम फिक्सिशियस फोर्स कहेंगे, और उस फोर्स का वैल्यू होगा ma, which is a pseudo force and always acts into the opposite direction of the acceleration। तो अब ऊपर की तरफ जो वर्क कर रहा है फोर्स वो टेंशन है इस स्प्रिंग की, और नीचे की तरफ दो फोर्स वर्क कर रहे हैं, एक इस मास m का वेट mg और दूसरा स्यूडो फोर्स ma। तो अब अगर इसका एबीडी लगाएं और आप t की वैल्यू कैलकुलेट करें तो आएगा t इक्वल्स टू mg प्लस ma।
यानी जो पहले वाले ऑब्जर्वर का, इस ऑब्जर्वर का कैलकुलेशन था ये सही था, और जो दूसरे वाले ऑब्जर्वर का कैलकुलेशन था ये गलत। जब हमने इनको लैब में जाके टेस्ट किया तो हमने पाया कि जो पहले वाले ऑब्जर्वर का कैलकुलेशन था, यानी जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाला ऑब्जर्वर था, उसका कैलकुलेशन ठीक था, और जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस था, ड्यू टू द सम लिमिटेशंस, उसका जो कैलकुलेशन था वो रॉन्ग कैलकुलेशन था। तो इस तरह से जो राइट कैलकुलेशन, जो इस स्प्रिंग का जो नेट टेंशन होगा वो होगा T इक्वल्स टू mg प्लस ma। सो दिस। अगले एग्जांपल की तरफ देखते हैं। ये हमारे पास एक कार है और ये कार एक्सीलरेशन a के साथ आगे की तरफ जा रही है। तो अगर इस कार में एक पेंडुलम है, ये कार जब एक्सीलरेशन a के साथ आगे की तरफ जाएगी तो इस जो पेंडुलम इस कार में लटका हुआ है उसका मूवमेंट कैसा रहेगा? उसका मूवमेंट कुछ इस तरह से, जैसे ही ये कार एक्सीलरेशन a के साथ आगे की तरफ जाएगी, एकदम आगे की तरफ जाएगी, तो जो पेंडुलम को होगा वो कुछ इस तरह से मूव करेगा, पीछे की तरफ मूव करेगा। दिस इज द वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ द not in our daily life, but this is the common example to understand। तो एक्सीलरेशन ए से जैसे ही ये कार आगे की तरफ जाएगी, ठीक वैसे ही ये जो पेंडुलम इस कार में लटका हुआ है, ये पेंडुलम पीछे की तरफ जाएगा, और इसका एक्सीलरेशन ए जब तक एक्सीलरेटेड रहेगी ये कार, वैसे ही इस पेंडुलम ये यहाँ से पोजीशन इस पे आएगा, और ये तुरंत यहीं के यहीं रेस्ट की स्थिति में, रेस्ट नहीं बट एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ जाएगा, जब तक ये कार एक्सीलरेशन ए से एक्सीलरेटेड रहती है। अब कंडीशन ये है कि अब हमारे पास दो ऑब्जर्वर है। पहला एक इनर्शियल फ्रेम का ऑब्जर्वर है जो बाहर से कार को देख रहा है, जिसके अकॉर्डिंग ये कार वेलोसिटी ए से एक्सीलरेटेड हो रही है, और उसके अकॉर्डिंग ये जो पेंडुलम है पीछे की तरफ लगा हुआ है। तो ये भी सोच रहा है कि ये पेंडुलम पे कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है जिसके कारण ये पीछे की तरफ हो रहा है। दूसरा एक नॉन इनर्शियल फ्रेम का ऑब्जर्वर है हमारे पास, जो कार के अंदर बैठा है। नॉन इनर्शियल फ्रेम का ऑब्जर्वर, इनर्शियल फ्रेम के ऑब्जर्वर का एक्सीलरेशन 0 होगा, क्योंकि ये अर्थ पे है तो इसका एक्सीलरेशन 0 होगा, और नॉन इनर्शियल फ्रेम के जो ऑब्जर्वर है उसका एक्सीलरेशन 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन होगा। क्योंकि ये ऑब्जर्वर कार में है और कार एक्सीलरेशन ए से आगे की तरफ जा रही है, तो निश्चित रूप से इस ऑब्जर्वर का भी एक्सीलरेशन 0 नहीं होगा। दैट इज, ये ऑब्जर्वर है नॉन इनर्शियल फ्रेम वाला ऑब्जर्वर, और ये ऑब्जर्वर है इनर्शियल फ्रेम वाला ऑब्जर्वर। अब इस प्रॉब्लम को हमने दोनों तरह से ट्रीट करके दिखाना है कि जब हम इनर्शियल फ्रेम के ऑब्जर्वर से इस कार का कैलकुलेशन करते हैं तब क्या रिजल्ट्स आते हैं, और जब इनर्शियल फ्रेम की दृष्टि से हम इस कैलकुलेशन को करेंगे तब कौन से रिजल्ट्स आएंगे। लेट्स सी दैट। सो अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम वाले ऑब्जर्वर की वजह से हम इस कैलकुलेशन को करें, ये जो ऑब्जर्वर इस कार के अंदर है, ये पेंडुलम की पहले वाली स्थिति थी डॉटेड लाइन से जो बनाई गई है, और ये पेंडुलम की अब वर्तमान स्थिति है जब ये कार एक्सीलरेशन ए से एक्सीलरेटेड हो रही है। तो इसका जो एफबीडी आप बनाएंगे तो ये यहाँ पोजीशन पे था पेंडुलम पहले, ये थीटा एंगल घूम के चला गया यहाँ। अब इस रोड की जो टेंशन, इस स्ट्रिंग की जो टेंशन है वो है टी। इसको हमने कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया। ये एंगल है थीटा, तो ये एंगल भी होगा थीटा। तो ये एंगल थीटा होने की वजह से टेंशन टी का ये कंपोनेंट हो जाएगा टी कोस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा टी साइन थीटा। तो टी को, इसका जो पेंडुलम का वेट है वो नीचे की तरफ काम करेगा mg, और ऊपर की तरफ काम करेगा टी कोस थीटा। तो ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास टी कोस थीटा इक्वल्स टू mg, और टी साइन थीटा चूंकि आगे की तरफ काम कर रहा है, और जो कार का एक्सीलरेशन है a आगे की तरफ है, ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, तो इस ऑब्जर्वर के नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होने के कारण यहाँ एक स्यूडो फोर्स वर्क करेगा, और स्यूडो फोर्स हमेशा किस डायरेक्शन में वर्क करता है?
टू द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन अगर इस डायरेक्शन में है तो स्यूडो फोर्स पीछे की तरफ काम करेगा, दैट इज एफ इक्वल टू एम ए। तो टी साइन थीटा बैलेंस हो जाएगा किससे, एम ए से। तो इक्वेशन ऑफ मोशन आई ओ आई टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी और टी साइन थीटा इक्वल्स टू एम ए। अब इसी सिचुएशन को अगर आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाले ऑब्जर्वर के साथ सॉल्व करते हैं तो कुछ इस तरह की कंडीशंस आपको मिलेंगी। अब ये वही कार है जो एक्सेलरेशन ए से आगे की तरफ जा रही है, वही पेंडुलम है जो पहले रेस्ट में था, लेकिन जैसे ही कार ने एक्सेलरेशन ए से चलना शुरू किया तो ये थीटा एंगल घूम के यहाँ कहीं रेस्ट में आ गया। ठीक है, अब एक इनर्शियल फ्रेम वाला ऑब्जर्वर जो इस कार के बाहर से इस कार को देख रहा है, इसके अकॉर्डिंग ये कार एक्सेलरेटेड हो रही है एक्सेलरेशन ए से, जबकि इस ऑब्जर्वर का अपना एक्सेलरेशन 0 है, यानी ये ऑब्जर्वर कहाँ है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। तो इसका एफबीडी अगर आप ड्रॉ करें तो यहाँ ये पेंडुलम की पहले वाली स्थिति थी जो डॉटेड बनाई गई है, थीटा एंगल घूम के जब इस कार ने एक्सेलरेशन ए से चलना शुरू किया तो ये थीटा एंगल घूम के पेंडुलम यहाँ आ गया। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो t को जब हम इसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे तो ये वाला कंपोनेंट t cos थीटा होगा, ये वाला कंपोनेंट t sin थीटा होगा। जो पेंडुलम का वेट है वो नीचे की तरफ काम करेगा, दैट इज mg। तो t cos थीटा इक्वल्स टू हो गया mg के बराबर। अब t sin थीटा दूसरे वाली इक्वेशन कैसे लिखें, यहाँ स्यूडो फोर्स तो होगा नहीं क्योंकि हम कहाँ वर्क कर रहे हैं, इनर्शियल फ्रेम में वर्क कर रहे हैं। तो इनर्शियल फ्रेम में स्यूडो फोर्स तो होगा नहीं, तो स्यूडो फोर्स अगर वर्क नहीं कर रहा है तो दूसरे वाली इक्वेशन तो फिर इस पेंडुलम को जो पीछे की तरफ रखने वाला फोर्स है वो कौन सा है, दैट इज द फोर्स कम्स फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। दैट इज ये जो फोर्स है जो आगे की तरफ लग रहा है, इसमें इस फोर्स को बैलेंस करेगा the force coming from the second law of motion, that is mass into acceleration। t sin थीटा के ऊपर जो पीछे की तरफ वर्क करेगा वो करेगा फोर्स F इक्वल टू एम ए, द फोर्स एक्शन है कमिंग फ्रॉम द एक्शन एंड रिएक्शन। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप क्वेश्चन को सॉल्व करें या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, आफ्टर द कंसेप्ट ऑफ स्यूडो फोर्स आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में कैलकुलेशन करें या इनर्शियल फ्रेम में कैलकुलेशन करें, उस कैलकुलेशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर नाउ, मीट यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।